Good evening, everyone. Welcome to Cyber Weekends, an initiative by WebHack Solutions designed not only for law enforcement and cybersecurity professionals, but for everyone who wants to dive into the world of cybersecurity. Over this course of this webinar, we aim to share practical knowledge, current trends, and meaningful discussions that contribute to a safer digital future. I'd like to take a moment to introduce our distinguished speaker, Lieutenant Colonel Dr. Santosh Khatsare sir. It's a privilege to welcome Lieutenant Colonel Dr. Santosh Khatsare sir, Chief Business Officer, Cybersecurity and DFIR at SysTools, a decorated Indian Army veteran with 23 years of service in the Corps of Signals. He brings over 25 years of unmatched expertise in cybersecurity, digital forensics, and incident response. He has held prestigious roles including Head of Digital Forensics Lab at CERTIN and has served on national cyber task forces and international committees. As an educator and mentor, he has trained law enforcement agencies across countries and led faculty programs at premium institutions like NFSU and RRU. An accomplished author, speaker, and the founder of India's first digital forensic journal, Santosh Sir is truly driving force in shaping India's cyber defense landscape. Let's give a warm virtual welcome to Santosh Sir and look forward to gaining valuable insight from his past experience. Over to you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Good evening to all of you, especially WebHack Solutions, Arya. Thanks for inviting me for interacting with your audience as such. So I'm first sharing my screen. Just let me know when you can see the screen. Okay. Can you see me now? Yes, sir, your screen is visible. Wonderful. So, as I said, that today we'll be conversing on, or conversation will be on how to become a cyber warrior. It's a in thing, talk of the town, and we'll also try to, find a career blueprint for the India's next generation or Gen Z as such. I usually speak on topics related to law enforcement, investigations, forensics, incident response, and I love mentoring students. So I interact with them in universities, in colleges, the young professionals who are making their career into corporates. But my specialization has always been digital forensics and incident response. Why am I saying that? The cyber is a vast field, and everyone's contribution to this field, irrespective of whichever vertical he or she contributes to, makes a very huge difference at the national level. So today, what we are going to do is we are going to have a strategic guide how you can launch and advance your career in India's rapidly growing cybersecurity landscape. And this can only happen because you have opportunities, but those with right skills and determination only can succeed in this particular agenda. I have had an opportunity to serve with both the government, when I'm in the government, the ministry, the law enforcement, that is the army, or interact with the police, academia, and now in the corporate for last 4 years. So you can assume that I do have a fair picture of what's happening across this particular cybersecurity spectrum. What we are trying to do is fortify our national defense through cybersecurity, because our ultimate goal is to fortify our national security. And as cyber warriors, we have to actually fight back whatever is happening in the digital space. Before going ahead, I would love to, or I would like to inform you the latest conflict which took place between our neighbor and us involved lot of cyber activities which took place. And cyber is a field, it doesn't see who has the more number of physical weapons. Even a small, you can say, a laptop, a man behind with a proper skill set can have equal damage on a huge
nation state, right? So I was just hearing yesterday a briefing of one of the government officials on this particular conflict which happened with our neighbor. And what came out as the lessons learned was that we were far, far ahead in our, other capabilities and even in the cyber capabilities, but we could have done more to achieve more. So that was the lessons learned. Although the lot different types of warfare was used, especially like drones and cyber, and of course the physical aspect. But the lesson learned was that we still need a lot of people or a lot of cyber warriors to come into this cyberspace and protect our system and the nation. Now, it is not necessary to protect a system or protect your nation only. Even if you are able to contribute by protecting yourself and the citizens of the country, it is an equal contribution and a very important contribution to make. Now, in this, even a single cyber attack can cripple a nation faster than 1,000 soldiers. That's what I wanted to tell you. And every byte, a byte when I mean says, you must in the digital age, every byte is is a battlefield, and every unprotected server is a vulnerability. So that becomes your weapon, and that has to be used. And for us as a nation, India, we are a growing super technological power. Cybersecurity now is not just a technical defenses, it's about our survival. So all of us, especially the present generation, has to understand this, and it has pros and cons, which we will discuss during our interaction. Those who understand warfare, they know that it is as a fifth dimension of warfare, along with land, sea, air, space. Securing cyberspace is not a strategy priority only; it's a national mission, and it is essential for India's digital transformation. So in this one slide, what I have tried to tell you that everything is important, everyone is important, and every activity in the cyber domain is important if it is done in the right way for the right cause, not the wrong way, by the way. So that's what I wanted to say. If you see India's threat landscape, because you have to understand the threat landscape. Now, people may say that we are fighting against cyber crimes. I see a lot of students, lot of young professionals having a lot of cybersecurity awareness campaigns, capsules, trainings. But the threat landscape is not does not end there. It goes much much beyond that, and at the end we have to protect our cyber boundaries of our country. That's one thing. But here, as a caveat or as an important point, what I want to make here is that I have often seen that most of the young minds who have just passed out or who are going to get pass out and contribute towards their professional growth are entering into cyber security awareness kind of activities. Even if you see for startups or if you see of any other activities, I'm not saying that is not important, but that is not your role as of now. Young minds, young students, young professionals should be more working in new products, R&D, and other thing. That's my observation which I've seen. But I see everyone entering into only awareness part, which is required. But I think you should leave it to the experienced people who have already given. And of course, you can contribute in terms of building products for such kind of activities. Don't take it in the other sense, but we have to be very critical in analyzing ourselves. We are growing. We are a growing nation in and a digital infrastructure. We should not catch the wrong path while doing this. You have long way to go, young mind. You have another 30, 40 years to contribute, because you have to do something which can make a difference to the nation as such. If you see, we are around 800 million internet users, and as I said, a thriving digital economy where everything is digital, your payments is digital, your e-commerce sites is digital. And so we become a prime target for adversaries. Adversaries means our enemy nation. If you see the countries who are not digitally connected, they have less impact. If you see a country like North Korea or something, they have less impact because they are less digitally connected. But if you see a country like in the West, most of them, they are more threatened in the digital space because they are more connected, and so is India.
And when we say that state-sponsored attacks are there, cyber criminal attacks are there, and threats are diverse. If you see a common man's threat is nowadays is no deep fake or a digital arrest or a cyber fraud happening. Again, I say that is equally important. But the ultimate goal, and which is again a part of the national goal, but there are other spaces also where you can contribute. Now, if you see the threats are critical infrastructure attack, when I mentioned about this Op Sindoor or whatever activity took place with a neighbor, there were a lot of activities or attacks happening on the CIIs, power grids, financial system, BFSI segment, and other things. And that has come out in various reports which have been published by NCRB or certain or any other bodies. So you should know this. Also, taking that this case study itself, there are a lot of disinformation campaigns which are run. What happened? Who did what? So this is also a part of a weapon used by in the digital space, in the cyberspace, to actually undermine someone's potential or his powerfulness. Espionage operations also happen, and this is also one kind of threat. Now, operations happen at a higher level at the state. When I mean state, it's a nation, and targeting defense network or sensitive government information or personal or honey trapping. This all things happen. So even if you contribute in that space of how you can protect your systems or the networks, if you're a professional or a working professional of your own entity or organization, it is equally a necessity because it is guarding our national interest. Nowadays, ransomware attacks paralyzing healthcare, essential services, these all are happening. And I'll not speak only on cybercrime because that will be too small, and it will be too small of a topic as such. Why I agreed to speak with you through WebEx solution or any other platform wherever I am, and when Arya approached me for this particular activity, that I want to give a bigger picture to all of you, the young minds, because we cannot think small. You have to think big. In any space you work, you have to think big, and cyber has no boundaries. So you can be attacked. You are a victim also, and you can be a assaulter also. So you have to think how you can work effectively with the you can say resources available at you. Now I'm not going to take the recent attacks because this particular audience is a mixed audience. But I would like to tell you a few years back attacks which happened and which were sorry, done by another state actors, means people uh, outside our country. Now, people inside the country with wrong mind, they are usually restricted to financial frauds, earning money. But people outside, they are looking to, I mean, disrupt your economy, your ecosystem, and even your defense and other critical infrastructure. If you see in 19, we have Kudankulam nuclear plant breach. It was a wake up call for us because vulnerabilities in systems connected to the network, especially the internet, were used to penetrate the infrastructure. There are reports available. Whatever I'm saying, it's all open source, so I'm not going to share anything. It is confidential. I should have given you a disclaimer at the start itself because I've worked in all spaces. Second is AIMS, Delhi attack which took place. It was for a week plus the systems were compromised and patient data was compromised. Of course, they came back to working, but it did have an impact. And various data leaks happening. I've just mentioned of 2003. As I said, I'm mentioning the old cases because new cases you can just Google it out and find out. So we face there are various figures coming out from various agencies of 1.3 million or 1.5 million attacks annually, and which are increasing day by day by various APT groups and our enemy states, and they are trying to attack and they are trying to reduce or give a very false picture of our country that these systems are not protected. So that's how what is called the hybrid warfare. The next generation is going to be of AI, the AI battlefield or AI deepfakes. When I say, let's take at the common citizens level, AI, you have AI deepfakes coming into picture. You have, you can say digital arrest into picture. You have many more things. So
this, in addition to autonomous system, will dominate future cyber warfare, and India must match these emerging threats with equal technological advancement. That's what I've underlined. AI powered attacks are happening. Like I'll tell you that all our everyone, in fact, anyone, maybe our neighbors or who are not connected to our boundaries, also they are using sophisticated kind of infrastructure to target the other nation states. Deepfake propaganda I mentioned about you. Now, financial system targeting, there are a lot of attacks happening in the BFSI sector on various. This is mentioned. It happens on everyone. I mean, you are just waiting to get compromised. Drone swamped vulnerabilities. You saw that again in the conflict, and also a lot of things happening. So there are a lot of projects which are being initiated by the government. How every individual can contribute towards this particular activity of defending India's cyber ecosystem. If you, I'll speak about the various agencies also. But for you at your level, at the level of the Gen Z, what I call, you have to understand that whatever you not do also impacts our cyber threat landscape. So what not to do is more important than what you do in this cyberspace. So the professionals also should understand this. Now let's come to the topic of today: why India needs cyber warfare. As I mentioned, there are various figures coming out from 1.3 to 1.5 million cyber attacks, and this year the projection is it can be around 1.5 million cyber attacks. Now, they are posing significant threats to national security and economic stability. When I say that now economic stability can be impacted from inside also by financial frauds happening, weakening the financial ecosystem. But national security is more threatened by outside threat, where espionage, where your CIAs are attacked and other things are attacked. So it is a whole ecosystem you should look at. Sir, Not sorry to interrupt you, yeah. but some people want you to speak in Hindi and English mix. They are not comfortable in all English. Okay, done. Thank So you, sir. no, that I should have been told before. But anyway, I'll do in English. Okay, Hindi and English. So मैं ये कह रहा था कि मीन हर साल हमारे मीन्स कंट्री पे या डिजिटल एसेट्स पे इतने सारे अटैक्स होते हैं, लेकिन हमारा मेन एम है टू प्रोटेक्ट इनसाइड एंड आउटसाइड। मीन दोनों, एक कॉमन मैन जो से बोलते हैं, या एक आदमी जो रास्ते पे चल रहा है, या एक यूपीआई, एक यू कैन से एक जो बिजनेसमैन है, या एक रेडी वाला है जिसके पास कोई थ्रेट है, एंड ऑल्सो द नेशन एज अ होल, बिकॉज दैट वो हमारा बिगर पिक्चर है। नाउ वॉरियर्स के फिगर्स, वी वांट साइबर वॉरियर्स, यस। द आंसर इज, डू वी वांट साइबर वॉरियर्स? आंसर इज ऑलवेज यस, मीन्स ये हाँ में है। But what is the figure? It keeps on varying. Now people say we want 500K or half a million, yeah, warriors by 2030. It is going to increase. I feel that मुझे लगता है कि every individual जिसके पास एक asset है should be a cyber warrior in himself, rather than wasting your time, of course, in unwanted activities on your gadgets, like some social media platform of making reels and just posting it and all. It would be more beneficial or more important for you, and firstly your family, your society and your nation, if you can contribute by protecting this system. जैसे कि हमें सभी पता है कि शॉर्टफॉल तो रहेगी, जब एक टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हर एक के पास एक सुविधा आती है, तो शॉर्टफॉल रहेगी। एज ऑफ नाउ ये बोल रहे कि लगभग 5 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत है। ये फिगर्स मैं थोड़ा सा मीन्स आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद द फिगर, बट आई से कि दिस इज वेरी मे बी मच मोर आर रिक्वायर्ड है। मैं जो बोलता हूँ कि हर एक को होना चाहिए, बट साइबर एक्सपर्ट एज सच, यस, एवरीवन कैन नॉट बी एक्सपर्ट, बट एटलीस्ट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जैसे कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी एक्सपांड होती है, वी नीड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एंड ये जो नीड है इस अब से ज्यादा अर्जेंट हो नहीं सकती। मीन दैट इज द नीड ऑफ द आवर, अभी चाहिए। यू हैव टू बी, नाउ इज द टाइम, व्हाट दे से। नाउ आई विल आल्सो डिस्कस अ फ्यू थिंग। आई नो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस पोजिंग दैट बीइंग पोज्ड टू मी, वो हम ना क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, बट ये है कुछ, दे आर फ्यू you can say some hurdles in this particular thing or activity to be done. Now cyber warrior
का अगर करता क्या, व्हाट इट शुड डू और व्हाट शुड बी द रोल, वो करना क्या चाहिए, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली योर कंपनी इंफ्रा और योर ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रा बट ऑल्सो योर सेल्फ, मीन्स आप अपने आप को और अपने घर वालों को भी प्रोटेक्ट करें तो वो भी प्रोटेक्शन के रोल में ही आता है। यू आर अ साइबर वॉरियर देयर ऑल्सो। डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, यस देयर मेनी जॉब रोल, जॉब रोल यानी बहुत सारे ऐसे जॉब्स है या जो या नौकरियां है जिसमें कुछ उसमें आते हैं कि भाई यू डू डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, कंपनीज में हो या आप जब भी ट्राई सब यानी डिफेंस में हो या पुलिस में हो। सो अगर आप एक पर्टिकुलर इंचार्ज कॉर्पोरेट में हो, एक सीजो का रोल कर रहे हो, तो डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑल्सो इज साइबर वॉरियर्स रोल। नाउ एज ए इंडिविजुअल शायद रिस्पॉन्स आपका रोल नहीं होगा, कोई और करेगा, बट डिटेक्शन या आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया है कि बहुत सारे, लेट मैं एक छोटा, मैं एक कॉमन मैन के साइबर क्राइम की बात करता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट हो या यूपीआई फ्रॉड है, रिपोर्टिंग नहीं होती। अभी बढ़ रही है रिपोर्टिंग बट होती नहीं, बिकॉज कंपनी ये रिपोर्ट इसलिए नहीं करती कि रेपुटेशन लॉस है, इंडिविजुअल रिपोर्ट इसलिए नहीं करता कि मेरा इमेज का क्या होगा। बट ये भी एक इशू है। लेकिन आप जब एक टीम का पार्ट हो इधर कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट में, आपका स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ अभी मैं जो आपको इस टॉक में बता रहा हूँ ये पूरा पूरा ये नहीं है, मींस इट्स नॉट द होल स्पेक्ट्रम, इट्स ओनली फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव ट्राइड टू गैदर एंड ट्राई टू टेल यू। फॉर एग्जांपल जो काम कर रहे हैं रेड टीम, ऑफेंसिव सिक्योरिटी या ब्लू टीम या डिफेंस, वो जानते हैं कि भाई टीम स्पेशलाइजेशन क्या है। वैसे बहुत और चीजें हैं। कोलैबोरेशन, नाउडेज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन। मैं गवर्नमेंट का इसलिए नाम लिया बिकॉज दैट इज हाउ आवर कंट्री रन्स, that government is getting policies and other infrastructure to get government, private enterprise and law enforcement together। जैसे मैं बोल रहा था कि मैं अभी कल ही वो एक जो आर्मी के जो हेड थे, आई मीन चीफ वाइस चीफ, उनका ये टॉक सुन रहा था जो मीडिया पे भी चल रहा था। वो भी वो कह रहे थे कि भाई हम जो इस कॉन्फ्लिक्ट में गए उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज का बहुत सपोर्ट रहा बट और लगेगा। सिमिलरली एकेडमिया का सपोर्ट चाहिए बट वो बहुत चाहिए। एंड सेम, सो एवरीवन हैज टू वर्क एट द पीपीपी मॉडल बोलते हैं हम उसको, तो वो काम करना पड़ेगा। नाउ एजुकेशनल पाथवे जो दिखा रहा हूँ दैट इज नॉट द ओनली वे बट फ्यू वेज। देखो अगर आपको साइबर में काम करना है तो यू शुड हैव सम क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू आईटी। वेदर, मैं तो इधर सिर्फ बीटेक लिखा है साइबर सिक्योरिटी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी कर रखे हो, दैट इज अ गेट। साइबर में ऐसा है कि आप अगर कोई एक एक क्वालिफिकेशन लेके जा रहे हो, एक बीटेक हो, एमटेक हो या बीएससी हो या एक डिप्लोमा हो या आईटीआई हो या कोई कोर्सेज कर रखे हो, दीज आर जस्ट फंडामेंटल थिंग्स, ये सब बेसिक्स है। जब आप एक्चुअली काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में या एज अ कंपनी में, तो वो इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो हम ग्राउंड पे जो इस्तेमाल करते हैं वो टोटली अलग होता है। तो ये सिर्फ फंडामेंटल्स क्रिएशन के लिए गेट पास करके काम करते हैं, मींस एक गेट की एंट्री है आपके लिए, बट ये जरूरी भी है बिकॉज ये इसके ऊपर ही आप बाकी सब जो एक्टिविटीज करोगे या कंट्रीब्यूट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। एंट्रेंस एग्जाम्स, वेदर जेई है या गेट दे रहे हो या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स है, बिकॉज ये जरूरी है इफ यू हैव टू गेट इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट्स। एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, कुछ भी हमें ना हर तरह के लोग की जरूरत है। एक डिप्लोमा होल्डर भी इतने इक्वलेंट इम्पोर्टेंट है जितना कि एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा है, बिकॉज हर एक का जॉब रोल है। अगेन कमिंग टू द जो मैं इसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो कल जो ब्रीफिंग हुई उसमें बोला कि जैसे कि ड्रोन्स आ रहे हैं तो सब ड्रोन्स में जा रहे हैं, वी डोंट नीड एवरीवन टू पुश टुवर्ड्स, बिकॉज उसकी डिमांड है तो हम एक तरफ ही जाए या हमें एक, सो वी हैव टू स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट कब हो सकता है, जब हमारे पास डिफरेंट स्किल्स हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस हो और डिफरेंट सेक्टर्स में हम जाए। तो कोई जरूरी नहीं कि भाई आपको मीन्स पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, आप एक बैंक में भी जाके अपना रोल ऑफ साइबर वॉरियर कर सकते हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। या आपको घर पे या सोसाइटी में भी कर सकते हो, या आप अगर आईटी कंपनी है या लॉजिस्टिक कंपनी उसमें भी कर सकते हो। एक आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो एज अ प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट उसमें भी कर सकते हो। तो आप ये देखिए कि हर कोई प्रोफेशन या स्किल का को एक साइबर का फ्लेवर देना जरूरी है। एंड उसमें भी एज ए इंडिविजुअल लेवल
डिफेंसिव साइबर वॉरियर, बिकॉज जो आपका मैंडेट नहीं है वो मैंडेट जो पुलिस का है या गवर्नमेंट का है या डिफेंस का है वो उन्हीं का है। अगर आप उन संस्थानों में जाते हो तब आप वो रिस्पॉन्ड या ऑफेंस का जो रोल्स कर सकते हो, बट एज अ नॉर्मल common citizen who is participating or helping in securing the digital infrastructure of the country, your major role as a cyber warrior is defensive. So you should know the scope and you should मीन्स ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है हमने। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ जो भी फ्रेशर्स है या बच्चे हैं जो 12th के बाद के और अभी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं ये कह रहा हूँ। ओके, अब स्किल्स क्या चाहिए? स्किल्स तो डिपेंडिंग ऑन द वर्टिकल यू वांट टू एंटर स्किल चाहिए, बट जैसे मैंने बोला कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जैसे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, आईटी फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग एंड स्किल्स है। सो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ विंडोज आता है तो यू शुड नो अबाउट लिनक्स सिस्टम, यू शुड नो अबाउट other system within Linux flavor, Mac system, you should know about। अगर मोबाइल्स में है तो BlackBerry में और Symbian है या other kind of operating system है, सिर्फ iPhone और you can say Android के बारे में जानना जरूर नहीं। You should have the knowledge of everything। Programming में there it's not that only one programming skill set you require, any programming skill set on which you are working on is required। there is ethical hacking बोलते हैं ना, ये take it in the right sense। hacking यानी कि किसी भी कंपनी का या गवर्नमेंट को सिस्टम जाके हैक करना, वो नहीं है। ethical hacking means doing it in a white collar job बोलते हैं इसको। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो अगर आप से वीएपीटी कर रहे हो तो कंसेंट लेके करते हो, बट यू आर डूइंग द सेम मेथोडोलॉजी एंड टेस्टिंग टेक्निक्स आप सेम यूज करते हो। तो यंगस्टर्स के लिए मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग लिंक्डइन या फेसबुक पे रह के आई एम एथिकल हैकर, मैंने ये कर दिया, ये वो गलत है। ये आपका स्किल हो सकता है बट इन द राइट डायरेक्शन। मैं अभी बोलता हूँ कि सही दिशा में अगर आप इसका इस्तेमाल करो, जहाँ जरूरत है और जहाँ मैंडेट है, मैंडेट का मतलब जहाँ आपको परमिशन मिल चुकी है वो वहाँ काम होता है। तो दैट हैज टू बी टेकन इन द राइट स्पिरिट, बिकॉज ये साइबर जो फील्ड है ना, इट इज अ डबल एज्ड वेपन। दोनों में एक चाकू की दोनों तरफ धार है, तो आप किस तरफ इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो आपकी जरूरी है। ठीक है, राइट। सो ये है। नाउ अभी तक ठीक है? गुड टिल नाउ? कैन एनीवन जस्ट कंफर्म? हेलो? यस सर। ओके, नाउ सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं बताऊं कि हर एक डिग्री करता है, एक डिप्लोमा करता है, फंडामेंटल तो ठीक है, बट जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसके सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। बिकॉज जो आप जो सीखते हो कॉलेजेस में या स्कूल में भी आजकल सिखाया जाता है वो बेसिक फंडामेंटल है। मैंने ये देखा है, सॉरी टू से, बट कुछ इंस्टीट्यूशन में वो आउटडेटेड भी है। तो अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करते हो तो पहले तो आप जो प्रेजेंट चीज है वो आप उसको यूज करते हो, राइट। एंड नेक्स्ट इज दैट आप क्या करते हो कि इसको मीन्स राइट डायरेक्शन में आपने ये करना है और सही सर्टिफिकेशन करना है, वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड सो कोई मुझे लोग पूछते हैं कि सर रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन कौन सा है, कैसे करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि यू हैव हेलो, समवन्स माइक इज ऑन, आई थिंक सो। तो इसमें यू हैव टू सिलेक्ट द राइट सर्टिफिकेशन यू वांट टू डू। अगर आप देखो साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग वर्टिकल्स कुछ मैं बताता हूँ। अगर आप से डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, डेवऑप्स जिसे बोलते हो, डेवसेपऑप्स, तो यू विल हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग नॉलेज लैंग्वेजेस। अगर आप फॉरेंसिक्स में जाना चाह रहे हो तो फॉरेंसिक रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, CHFI है। तो अगर आपको से ऑडिट में जाना है तो सीसा रिलेटेड ऑडिट रिलेटेड सर्टिफिकेशन है। अगर आपको कंप्लायंस में जाना है तो कंप्लायंस रिलेटेड सर्टिफिकेशन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू हैव द राइट सर्टिफिकेशन यू वांट टू डू फॉर जिस वर्टिकल को आप सिलेक्ट करते हो उस वर्टिकल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालिए और उसी सर्टिफिकेशन करिए फॉर for your betterment or career growth, and it is also equally responsible for taking you ahead.
ये भी देखा गया है कि मैक्सिमम, मैंने जब बोला रिगार्डिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, maximum are nowadays they are coming to participating in CTFs, conducting CTFs, not only academic organization, the government also, the private corporate also. So CTF competitions में जाने से आपको थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटर्नशिप साइबर में अगर है तो इंटर्नशिप के बगैर मुश्किल है। इसमें मैं टॉक कभी और करूंगा, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट इन इंटर्नशिप, क्योंकि मैं ये इंटर्नशिप पे टॉक अलग करता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। एंड स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को या जो पास आउट हो रहे हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके पास बहुत क्वेरीज होती है कि मैंने कैसे करना है, कैसे करना है। बट एक ग्राउंड रूल मान लीजिए कि इंटर्नशिप जरूरी है, बिकॉज एक एग्जांपल मेरे फील्ड का ही देता हूँ जो फॉरेंसिक्स का है। देखो एकेडमी में आपको ये नहीं हैंड्स ऑन कमर्शियल टूल शायद ना मिले, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन दैट केस ओनली आप अगर इंटर्नशिप करोगे तो आप इंडस्ट्री रेडी हो सकते हो। तो ये है। और फिर एक्सरसाइजेस अलग अलग तरह की होती है, रेड टीम, ब्लू टीम एक्सरसाइजेस, सो दैट इज देयर। नाउ कमिंग ऑन टू गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रेनिंग सेक्टर, मैंने कुछ मेंशन किया है, बट आई विल टेल यू मोस्ट ऑफ द इवन द प्राइवेट सेक्टर अंडर द CSR और अंडर वेरियस एक्टिविटीज आर कंडक्टिंग lot of you can say programs for cyber warriors, and you will see this is, ये जो बोल रहा हूँ ये गवर्नमेंट तो कर ही रहे, बट कॉर्पोरेट भी बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, whether it's every big multinational organization or even a small startup is trying to get into these programs. मैं सिर्फ एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, एक अपना जो NCSC है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, जो सेक्रेटरीट है, उसके अंडर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा वेरी सिंपल रखा हूँ कि एक NTRO करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसका काम है उसको वही करना चाहिए। जैसे सर्टिन है, साइबर डिफेंस करती है, NCIPC है जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या रोल है, कौन कर रहा है, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अभी फॉर एग्जांपल मैं सर्टिन की बात करता हूँ। सर्टिन में एक CSK है, साइबर स्वच्छता केंद्र है, और या जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है कि उसमें वो जो भी सिस्टम या मोबाइल डिवाइसेस या कोई डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज है उनको बताती है एंड अलर्ट करती है या उनके सोल्यूशंस देती है। सिमिलरली NCCC है, वो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज को इन्फॉर्म करती है, ISP जिसे हम बोलते हैं। अगर देखा जाए करियर अपॉर्चुनिटीज इन सर्विंग द नेशन इज, इफ यू सर्व, मैं तो बोलूंगा आप अपना मदद करोगे साइबर स्पेस में, वही बड़ी बात है। बट देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। डिफेंस में जाओ तो आर्मी, इंडियन आर्मी है, यू कैन एंटर थ्रू NDA है, IMA है, US TGC स्कीम्स है। नेशनल सिक्योरिटी में सर्टिन है, ऐसे बहुत सारे बॉडीज, I4C है, सर्टिन है। इवन या मैं तो बोलूंगा आपके जो नजदीक वाले साइबर सेल्स है उनको भी आप अगर मदद करो साइबर स्पेस में, तो वो भी बड़ी बात है, और दैट इटसेल्फ इज अ कंट्रीब्यूशन। लॉ इन्फोर्समेंट में गवर्नमेंट पोजीशंस, हाँ मैं मानता हूँ कि वो स्टेबिलिटी देते हैं, बट जब साइबर स्पेस में यार आप जब एक देश की बात करते हो ना, इट्स नॉट अबाउट मनी। इतना आप अगर ये गोल लेके चलोगे ना, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आई नो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट वो आपको भी वो बाय मीन्स बस एक बाय प्रोडक्ट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको उसके लिए अपना एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू हैव टू डेवलप स्किल फॉर दिस। इफ यू सी प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अगर दे, तो मेजर इंडियन IT फर्म्स है एंड ग्लोबल टेक कंपनीज आर, वो एक्सपांड हो रहे हैं। एवरी कंपनी में लाइक एक सीजो की जरूरत है, एक CTO की जरूरत है, एक CIO की जरूरत है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में तो बहुत, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम अटैक्स तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फार्मास्यूटिकल्स और CII वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। सो देयर लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द डिजिटल ट्रांजैक्शंस, द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। टेलीकॉम और क्लाउड है। तो मैं ये बोलना की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंडियन साइबर सिक्योरिटी का जो मार्केट है, ये वो डबल होने वाला है या इनसे ज्यादा होना है, एंड उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आप लोगों को एज अ साइबर वॉरियर, ये एज अ साइबर प्रोफेशनल एंटर करना है, तो यू डोंट बहुत माइन्यूट मत रखो कि मेरे को सिर्फ इसी सेक्टर में जाना है। जिस भी सेक्टर में आप काम करो उसमें यू कैन कंट्रीब्यूट। चैलेंजेस देखा जाए तो जैसे कि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी 6 मंथ्स कहा जाता है, एंड लैंडस्केप भी बदल रहा है।
सोफिस्टिकेशन, अटैक वेक्टर्स भी बदल रहे हैं। अटैक वेक्टर यानी जिस तरह से साइबर अटैक्स होते हैं वो अलग अलग तरह, पहले होता था डिडोस अटैक, मेलवेयर भेज दिया, फिशिंग मेल भेज दिया, अभी होता है कि भाई रैंसमवेयर भेज दिया या पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज कर दिया थ्रू सम अदर अटैक वेक्टर। सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ कि स्किल गैप का इशू है। अब ये इशू एड्रेस करना इज नॉट ओनली द जॉब ऑफ, मीन्स I don't blame the present generation for this. We as seniors are to be, more watchful, and we have to take the remedies. Because जैसे मैं बोला, academic institution में अगर outdated syllabus पढ़ाया जाए तो skill बंदा कैसे डेवलप करेगा, या जॉब रोल बेस्ड नहीं सिखाया जाए। कि आई फील कि अगर एक एक कंपनी में मुझे एक डेवलपर की जरूरत है तो उसका डेवलपिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है rather than other स्किल्स, राइट। एंड दूसरा भी है, चैलेंजेस है, जैसे कि हम एक डेमोक्रेसी है तो वी हैव लॉट ऑफ रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस प्रेशर्स व्हिच वी हैव टू, बिकॉज इट्स इन इंटरेस्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करो तो एआई इज द इन थिंग। हर एक एआई की बात करते हैं, बट एआई अगेन इज अ डबल एज्ड वेपन, एज आई से। जैसे कि हम फॉरेंसिक्स में कहते हैं कि एआई इज अ प्रॉब्लम आल्सो एंड एआई इज अ सॉल्यूशन आल्सो। आज मैं फॉरेंसिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में सिर्फ उसका एक रेफरेंस दे रहा हूँ। लास्ट में मैं सिर्फ एक केस स्टडी है ना, एक ये दूंगा आपको कि इस फील्ड के एज एग्जांपल दूंगा। Automation, most of the companies are using automation for routine security tasks, and let me tell you, few job roles are vanishing. यानी कुछ जो positions है job role vanish हो रहे हैं, but कुछ बन भी रहे हैं। क्लाउड यानी हर आप तो एवरीथिंग इज क्लाउड, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइबर लॉ एक्सपर्ट्स, बिकॉज जैसे लॉ भी है ना, उसमें भी हमें साइबर एक्सपर्ट की जरूरत। आप साइबर लॉज के बारे में सुन रहे होंगे या उनको सुनते होंगे या उनको फॉलो करते होंगे, तो बट उनको भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है, और टेक्निकल पीपल जो है उनको भी साइबर लॉज की जरूरत है, या अपने जो भी लॉज है वो गवर्न करते हैं उसकी जरूरत है, ग्लोबल एज वेल एज। अब बात करते हैं अगेन, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज नॉट दी वे, यानी यही तरीका सिर्फ है नहीं, बट मैं अपना सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें आना चाह रहे हो और साइबर वॉरियर का कैरियर मैप देखना चाह रहे हो, तो पहले ये तो बेसिक आईटी के बारे में जानो, नेटवर्किंग के बारे में जानो, फंडामेंटल सीखो। अब कोई किसी को 1 साल लग सकता है, कोई 6 महीने में ये सीख सकता है। सेकेंड एंड थर्ड ईयर अर्न सर्टिफिकेशन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज है। सीटीएस में पार्टिसिपेट करो, बग बाउंटीज में पार्टिसिपेट करो, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। स्पेशलाइजेशन इज द की। मैं हर टाइम लोगों को कहता हूँ कि स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जेनरिक रहोगे तो आप ठीक है, यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बट इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल ग्रोथ और करियर पॉइंट ऑफ व्यू, देन जनरलाइजेशन विल नॉट हेल्प। ओके, जनरलाइजेशन नहीं हेल्प करेगा, बिकॉज एज मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आप सिर्फ साइबर अवेयरनेस और साइबर ये करोगे तो वो ठीक है, चाहिए, बट वो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। यू हैव टू सिलेक्ट, स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू डू। एंड लीडरशिप ट्रैक, आप लीडरशिप यानी कोई प्रोजेक्ट टीम लीडर या आगे कोई लीडर है तो वो आप 6 साल या 5 साल के बाद सुनो, प्लान करो। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर में आप मीन्स पीपल में देखा है क्लेम करते हुए कि मैं भाई ये बन गया, मीन्स लेट्स नॉट गो इनटू दैट टेरिटरी, बट कहने का मतलब है कि वी शुड नॉट फूल आवरसेल्व्स इन द साइबर स्पेस, वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वी शुड हैव दिस। नाउ आपको ना टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। प्रोग्रामिंग के बारे में बात की हमने, सिस्टम्स के बारे में बात की, एनालिसिस के बारे में, बट कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर टेक्निकल रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर ब्रीफिंग, टीम वर्क बहुत है, और एथिक्स। मैं जब एथिक्स पे ज्यादा बोलूंगा, एथिक्स हर जगह काम आते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आप एक लॉ में हो तो कॉन्फिडेंशियल देता है, फॉरेंसिक्स में तो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। जिस प्रोफेशन में आप हो उसके एथिक्स किसी का माइक चालू है तो एथिकल रहना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेवरेजिंग एआई एंड ऑटोमेशन इन साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एआई पावर्ड टूल्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। सीन तो चलो सॉक का है, बट सिक्योरिटी ऑटोमेशन फ्यूचर स्किल रेडी, यू शुड बी रेडी, फ्यूचर रेडी। हम जब कॉर्पोरेट में अभी बात करते हैं, हम बात करते हैं एंटरप्राइज रेडी की।
but as a cyber warrior you should be future ready for with your skill set. So you should know how the and where the world is moving as such. कुछ सिंस ये हम साइबर वॉरियर की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें करियर भी आता है, तो मैं बोल रहा कि रिज्यूम बिल्डिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको व्हेन यू बिल्ड अ रिज्यूम, और स्पेशली इफ यू इन द लैब्स, एंड क्वालिफिकेशन तो हाँ ज़रूरी है ही, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो आपको इधर एक जो 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 एक सीनियर है या जो आप मेंटर जिसे मानते हो, अगर वो है स्पेस में, तो उससे गाइडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है. इट विल हेल्प यू ओनली. कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए. साइबर वॉरियर ऐसे नहीं कि मैंने आज एक सर्टिफिकेट कर दिया और मैं साइबर वॉरियर बन गया. गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव रन करती है, जैसे साइबर कमांडोज है, अलग इंस्टीट्यूशन रन करते हैं रिगार्डिंग अदर साइबर इनिशिएटिव. तो आपको अपडेट रहना जरूरी है, कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड सर्टिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट क्राइम्स हैपनिंग अराउंड यू. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है. अभी मैं सिर्फ 2-3 स्लाइड, जैसे मैंने साइबर वॉरियर्स की बात की या करियर की बात की, मैं सिर्फ ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो मैं सिर्फ बताऊं कि अगर इस स्पेस में आपको करना है, तो एक वॉरियर बनना है, तो आपको क्या किस चीज की जरूरत है. तो ये नॉट इन डिटेल बट वेरी मीन्स वेरी कैन से 1000 फीट और व्यू में बता रहा हूँ. अगर आपको फॉरेंसिक्स में वैसे करियर बनना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉरेंसिक क्या है. यू हैव टू डिजायर, मीन्स आपको अंदर से इंटेंट होना चाहिए कि मुझे एक बनना है या मुझे करना है. तो नॉलेज जब आप सर्टिफिकेशन से करते हो कि भाई मैं इस वर्टिकल के रिलेटेड सर्टिफिकेशन करेगा. आप सॉक में जाना तो सॉक रिलेटेड, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट रिलेटेड, आप एज ए इन्वेस्टिगेटर पुलिस को हेल्प कर रहे हो तो आपका उसका बारे में होना चाहिए. एंड री एनफोर्समेंट. तो हर एक करियर में सेम पर्टिकुलर यू कैन से पाथ होता है कि आप अवेयर भी होना चाहिए, इंटेंट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, एंड यू शुड री एनफोर्स योर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये आप जान लीजिए. नाउ मैं हर टाइम लोगों को बोलता हूँ कि आप टी मॉडल यूज करो. ये मॉडल मैंने नहीं बनाया, इट एग्जिस्ट बिफोर मी. कोई भी सेक्टर में आप साइबर में जाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको साइबर के बारे में सब कुछ पता होना बहुत अच्छी बात है, बट यू कैन नॉट सक्सीड बाय नोइंग एवरीथिंग. सो ये टी लेटर देखा आपने, ऊपर एक फ्लैट है और फिर डेप्थ है. तो यू शुड हैव नॉलेज अक्रॉस स्पेक्ट्रम, बट यू शुड ड्रिल डीप इन योर स्पेशलाइजेशन. तभी आप एक सक्सेसफुल हो सकते हैं. आपको स्कोप नैरो करना है, एंड स्पेशलाइजेशन इज बेटर देन जनरलाइजेशन. मींस आप स्पेशलाइजेशन करो तो वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा. अगर मुझे कोई बोलता है, मेरे अभी 27-28 साल हो गए साइबर फील्ड में आके, तो मुझे कोई बोलता है कि साइबर में आप ऑडिट पे बात करता हो. हाँ मैंने किया, मैं बहुत बात करता हूँ. मुझे आज बोला गया कि आप इसमें साइबर वॉरियर के बारे में बात करता हो. कोई मुझे बोलता है कि आप ना R&D के बारे में बात करो. कोई बोलता है कि आप कंप्लायंस के बारे में. करता जरूर हूँ, बट दैट इज नॉट माई स्पेशलाइजेशन. आई हैव नॉलेज ऑफ दैट, आई कैन गाइड, आई हैव सीन, आई हैव वर्कड. बट मेरा जो थरो एक्सपीरियंस है, जो मेरा टी की जो डंडी है नीचे वाली, वो मेरी DFIR की है, मीन्स मेरे इन्वेस्टिगेशंस की. सो ऑल्दो आई नो एवरीथिंग, आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग इन साइबर अम्ब्रेला, पूरा पता है मुझे, बट मैंने अपने आप को एक पर्टिकुलर स्किल लेके उसको उसमें अपना एक स्पेशलाइजेशन बनाए रखा है. तो फॉर द प्रोफेशनल्स हु वांट टू कम, दे हैव टू यूज दिस मॉडल इन एनी स्केप. तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए. सेम किसी भी वर्टिकल में जाओ, ये सेम आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है. टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो ये सब है. इसी भी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेशन में मैं ये बोलता हूँ कि आप, मैंने पहले ही बताया कि आप एक डिप्लोमा होल्डर हो, या फिर एक बैचलर डिग्री होल्डर हो, या फिर आप एक मास्टर्स वाला हो. तो हर एक की जरूरत है हर एक फील्ड में. तो ऐसे नहीं जरूरी है कि मैं सिर्फ एक ही, मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है या मेरे को मास्टर्स ही करना है. अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, देन उसके लिए भी जॉब रोल्स एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स उसके लिए भी काम है, हर एक के लिए काम है, विच वी हैव टू डू. मैंने सिर्फ एक एग्जांपल डाला है स्क्रीन पे. एक अगर फॉरेंसिक लैब होते तो उसमें हर तरह के लोग चाहिए. एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहिए, एक लैब असिस्टेंट चाहिए, एक एनालिस्ट चाहिए, बहुत सारे एनालिस्ट लेते, एक क्वालिटी मैनेजर चाहिए, एक टेक्निकल मैनेजर चाहिए. तो हर तरह के लोगों की जरूरत होती है. तो अगर आप लोग एज अ दिस, यू शुड लुक फॉर
हाउ यू कैन डू, इसको हम इंग्लिश में एक स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस, आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या है, तो उसके ऊपर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने आप में, और आप नेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये मैंने वही बोला, अगेन ये सेम है। सो हायरिंग एजेंसी देखो, लॉ एनफोर्समेंट है, डिफेंस है, प्राइवेट फोन्स है, एफएसएल्स है। अगर नहीं भी तो आप खुद का भी डिफेंड करो साइबर स्पेस में, वो भी एक एक्टिविटी। यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन आल्सो बाय प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इन द साइबर स्पेस। एक और फॉरेंसिक्स में मैं सक्सेस रोडमैप देता हूँ कि क्वालिफिकेशन कोई भी हो, बट इंटर्नशिप जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती है। सर्टिफिकेशंस भी जरूरी है, बिकॉज जो मैंने आपको अभी कहा कि गेट पास तो है, बट आपको अगर स्पेसिफिकली अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज होना है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत है। जॉब्स तो देखो, जॉब्स तो मिल जाएंगे, लोग अगर स्किल्ड है तो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स आर द नॉट, मैंने देखा कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दैट इज नॉट, that should not be a goal, because that is not the only thing. You can do anywhere, do great here. आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हो रहे हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, मींस आईओटी आ रहा है, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ये सब सुनते होंगे आप, ये बज़वर्ड्स है आजकल, एआई, एमएल, ड्रोन्स, ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक, वर्चुअल मशीन, डीप फेक। तो आपको ना आपने आपने बैठना है एक टेबल पे, आपका स्वॉट एनालिसिस करना है आपके, और फिर आपको देखना है कि आपको करना क्या है। और अगर नहीं भी करना है तो एटलीस्ट खुद को कैसे आप इसको और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो जरूरी है। हाँ, कंक्लूजन में ये कहना चाह रहा हूँ कि एम्ब्रेस द साइबर वॉरियर जर्नी। साइबर वॉरियर सिर्फ गवर्नमेंट में काम करने से बंदा नहीं बनता, या लड़की नहीं बनती। अगर आप अपने आप को, अपने सोसाइटी को, अपने आजू बाजू वालों को प्रोटेक्ट करो, तो वो आप उतना ही बड़ा काम कर रहे हो जितना एक पुलिस वाला या जितना एक सोल्जर जो साइबर में काम कर रहा है। तो डिमांड बहुत है। डिमांड अगर नहीं भी होती तो भी ये जरूरी है, बिकॉज आप एक डिजिटल इकोसिस्टम में अपने आप के सर्विसेज अवेल कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है। This is, but this, by being a cyber warrior, ना, this is your opportunity to protect India's digital sovereignty, ठीक है। And the future of India's digital economy depends on cyber warriors we train today. So ये भी एक शुरुआत है, अगर आपने ये टॉक भी अटेंड किया है तो ये भी आपके लिए एक शुरुआत है, फॉर पीपल हु आर न्यू इनटू दिस फील्ड। सो आपका जो एक्सपर्टाइज है, जो आप बिल्ड करोगे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, पूरे जितना भी मैंने अभी लगभग 1 घंटा आपसे बात की, कि इफ यू वांट टू बिकम अ साइबर वॉरियर, पहले तो आप खुद, यू हैव टू डिसाइड दैट यस, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, माई सोसाइटी, माई नेशन, एंड वो आपसे शुरू होता है। बाकी सब है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, पुलिस है जो कि अगर कोई होता है तो आपको हेल्प करेंगे, आपको उनको हेल्प करना है, एनेबल करना है, ठीक है, कैटलिस्ट बनना है। गवर्नमेंट है, आर्मी है, या अगले ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टेन मिनिस्ट्री, I4C जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है। I would like to tell one thing before I end this particular thing, is that, as I said, I don't want young minds to only concentrate on awareness, cyber awareness. Please apply yourself for, because we as a country, हमें इस देश को सिर्फ अवेयरनेस एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे यंग नेक्स्ट जनरेशन चाहिए जो कि हमारे लिए साइबर प्रोडक्ट्स बनाए, हमें प्रोटेक्ट करे, देन R&D करे, वो है, वो जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा एक मैसेज है, मीन्स इट्स नॉट अ मीन्स क्या बोलते हैं, मैंडेटरी है नहीं, बट एक मैसेज है मेरा। तो नाउ आई हैव finished my this talk as such, 1 घंटा। I hope I'm able to convey few things to you, because मेरी कोशिश ये हर टाइम रहती है कि मैं जिनसे भी इंटरेक्ट करूं, मैं अपना पक्ष रखने की कोशिश करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि भाई, जैसे कि आप लोग भी चाहते हो, कि आप लोग शायद कुछ लोग उसमें हो गए कि आप अपना करियर बनाना चाहते हो, नथिंग बैड, बट उसके साथ यू कैन ऑल्सो हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मैं अभी कॉर्पोरेट में हूँ, तो मेरा रोल क्या है कि हाउ आई कैन हेल्प इन कॉर्पोरेट, और हाउ आई कैन हेल्प द नेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो मेरा एजेंडा क्या है कि मैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाऊं, जो मैं कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, ताकि उससे क्या हमारा, अगर अब इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है तो उसमें वनरेबिलिटी कम मिलेगी, इसमें हम और सिक्योर रहेंगे। इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत या डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव्स देखते हैं गवर्नमेंट में। तो
तो हर कोई बंदा और हर कोई everyone can contribute in his own capacity. तो ये आप जान लीजिएगा, and you should start now, if not you have if you have not done it. So with that, I have come to the end of my talk. I have some time for some questions, and I would only be happy if you can go home or take away is that you have also contributed to this particular cause. So wish you all the best, and do well in life in any professional growth. Thank you very much. If any questions, I'm ready to take. If the moderator is moderating, then I will. Yes, I think Shikhar Jaswal has raised hand. So Shikhar, you can go ahead. पूछ सकते हो क्या? Hello, Jain sir. Good evening. So, sir, it was a very insightful session that you have given. So, sir, my question is that as you have emphasized that for becoming a cyber warrior doesn't mean to only go in government jobs, sir. Sir, but what I have realized now that if we go in government jobs in cyber roles, we would be able to do much more because when comes to cyber warrior in private space, so the scope becomes very limited as compared to the people of the cyber warriors in the government. I had tried for the army for the technical entries, but not able to make. No, I want to become a cyber warrior in core of signals, but not able to make because the test designed are not testing the cyber security skills. They are I'll testing the answer this person. question is getting long. Shikhar, firstly, thank you. The way you started with Jayan, that itself speaks very highly regard of you that you wanted to, your intent was there from the start. But in any organization, I'll answer the last thing first, that in any organization that you go, you first enter that organization and then develop that skill. तो आर्मी में अगर आपको जाना है तो कोई साइबर करके देखेंगे नहीं, आप अगर इंजीनियर ग्रेजुएट करके जाते हैं, फिर अंदर जाके आप उसको आपको वो एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। कोर ऑफ सिग्नल्स में अगर आप गए तो साइबर नहीं कर, प्लीज थोड़ा म्यूट हो जाएगा जो भी है। तो उसमें आप नहीं, उसमें आपको डायरेक्ट साइबर नहीं मिलेगा अगर कोर ऑफ सिग्नल्स में भी जाते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे वर्टिकल्स है। तो अगर आपका स्किल वैसा है या आपने डेवलप किया तो फिर आप साइबर कंपोनेंट या साइबर वर्टिकल सब वर्टिकल में जाओगे। एंड रिगार्डिंग साइबर वॉरियर की जब आप बात करते हो ना, साइबर वॉरियर इज नॉट अबाउट एंटरिंग अ गवर्नमेंट प्रोफेशनल, एक इंडिविजुअल है, हाउ एम आई प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ कंट्री। And as I say, you can contribute towards nation growth not by you. See, you can try. Everyone tries. I tried for UPSC. I did not make it. I tried for some other things. I was not successful. But that doesn't mean I was not successful while I wanted to join the defense forces. I was. So हर एक का एक you have to be very flexible in this kind of thing. And thank you for asking this question. You can still try in many ways. There are a lot of contractual opportunities which come from ministries and all. If you are well qualified, even if you have not joined the defense forces, you can join the government in some other ways, right? किसी एक ने पूछा कि is CHFI equally important, right? तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्किल आप करना चाह रहे हो, yes, if you asking of forensics, I will still recommend CHFI because वो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। आप ये समझिएगा कि और अगर लेकिन आप अगर CHFI इसका मतलब अच्छा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनोगे, वो नहीं है। फिर भी आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर एक स्किल अलग है, हर एक अलग है। Good to see that people are working with law enforcement and cyber volunteers. So that is also good. Now Parth has raised his hand, so Parth आप पूछ सकते हो एक question because he is there. हाँ Parth. पार्थ आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Hello, good evening, sir. First of all, thank you so much for the insightful session, sir. उसमें आपने दो टर्म्स के बारे में मेंशन किया था, that was UGC and TGC, UGS and TGC, yes sir, और NDA के साथ साथ लिखा था। तो ये दो टर्म्स का क्या मतलब होता है सर? UGC एक स्कीम है जो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है,
जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंजीनियरिंग करते वक्त टैप करती है। अभी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी नई स्कीम आ रही है 10+2 और टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री जो कि पास आउट होते हैं, और यूएस है जो कि पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में और उनको वो एनरोल करते हैं। तो ये वो अलग स्कीम्स है। इसके अलावा 12th के बाद की भी स्कीम है, जैसे आप एनडी में जा सकते हो, सीएमई में जा सकते हो जो पूना में है, या फिर मऊ में सीटीडब्ल्यू में जा सकते हो। वो बहुत सारे हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप लिंक्डइन पे सेपरेट लिए करो, मैं आपको बता दूंगा। एक और आदित्य ने पूछना है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन आईआर फील्ड you have faced so we can make products in that field? देखो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। आईआर इज द टॉक ऑफ द टाउन। कॉर्पोरेट्स में स्पेशली आईआर चलता है कि कोई अटैक हो रहा है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो बहुत है अगर आप आईआर में जाना चाह रही हो, ठीक है। सो इसके लिए अगेन यू विल हैव टू कनेक्ट 1-to-1, यू हैव टू कनेक्ट विद इंडस्ट्री, यू हैव टू सी व्हाट, ओके आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे, मैं अलग तरह से समझाता हूँ। देखो, ऐसा है कि हर सेक्टर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक आते हैं। जो अटैक डिफेंस पे आएंगे या जो अटैक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, उसमें भी यार बीएफएसआई में आएंगे, वो अलग अलग होंगे। जो अगर बैंकिंग सेक्टर को कोई अटैक आ रहा है, वो अलग टाइप ऑफ अटैक आ रहा है, वो रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, वो डिडोस अटैक हो सकता है। बट अगर कोई डिफेंस में या गवर्नमेंट में आ रहा है तो एस्पोनाज अटैक हो सकता है। तो एवरी सेक्टर, तो उसका आईआर भी डिफरेंट होगा। तो जिस सेक्टर स्पेसिफिक अटैक्स होंगे या अटैक वेक्टर्स होंगे, उसको आप एड्रेस कर सो, उससे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट होंगे। So it's very, every field in cyber is very vast. Okay, Aditi. रंजीत, आपने टावर डम के बारे में पूछा, मैं वो जवाब नहीं दूंगा बिकॉज ये सेशन थोड़ा बड़ा है। इट्स नॉट अबाउट फोरेंसिक्स। तो आई थिंक जो बट ये ना, ये आप जब मोबाइल इन्वेस्टिगेशंस करोगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन हिमांशु ने पूछा है कि आई एम अ वॉलंटियर बट आई हैव नो जॉब। देखो, गाइडेंस का ऐसा है, आई टोल्ड यू फ्रॉम स्टार्ट ओनली कि देखो, आपको एक स्किल, आपको खुद को आइडेंटिफाई करने कहाँ मैं फिट बैठता हूँ। वर्किंग एज अ साइबर वॉलंटियर इज टोटली डिफरेंट एंड गेटिंग अ जॉब। अगर आप गवर्नमेंट के साथ करना चाह रहे हो और लॉ एनफोर्समेंट के साथ ऑलरेडी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको फिर यू हैव टू फाइंड, जिसके साथ काम कर रहे हो वो देखो ना उधर किस तरह के लोगों की जरूरत है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी का मैं जैसे कहता हूँ कि इन दिस वर्ल्ड इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट। यस, डिमांड सप्लाई चेन होते हैं, या फिर यू कैन डू फ्रीलांसिंग। इफ यू आर सो गुड एज अ साइबर वॉलंटियर, यू कैन डू फ्रीलांसिंग, ओके। एंड देखो, इंटर्नशिप जो गुड़गांव पुलिस की आप जो मेंशन कर रहे हो, आई हैव आल्सो बीन देयर। दिस ईयर आई वाज नॉट देयर, बट लास्ट सिंस द स्टार्ट आई हैव बीन देयर। सो इट इज जस्ट अ, you can say, a platform given to you to learn about different thing. तो उसका आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिलेगा उससे, आपको स्पेशलाइज करिए। वो बहुत इंटर्नशिप, वैसे वो बहुत हर तरह का आपको नॉलेज या एक वो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। सो नो इश्यूज, मींस यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, बट आई विल आंसर यू द राइट वे। सो यू शुड नॉट टेक इट इन द अदर वे सेंस। जब तक हम अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करें ना, कि तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। So that's what I want. And few students, I remember a student, means not in this session, one of the students asked me a question and I gave him a very you can say truthful answer. So उन्होंने मुझे बोला, सर आप मुझे हेल्प नहीं करना चाह रहे हो। वो हमारा इंटेंट है नहीं। देखो, हमारे लिए सब अभी हम चाहते हैं कि हमारा एक इकोसिस्टम, इस देश का इकोसिस्टम बने, बट आपको कुछ सच्चाइयाँ भी अपने आपको समझ लेनी चाहिए। You must be very good in some skills, I am 100% sure. तो उसको थोड़ा इस्तेमाल करिए एंड देखिए, बिकॉज थोड़ा सा देर हो जाती है तो इसका मतलब आप अपने स्किल्स बढ़ा रहे हो, तो यू विल श्योरली बी सक्सेसफुल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द एनवायरनमेंट हु आर हेल्पिंग आउट, दैट यू कैन गो। तुषार, you want to ask a question? Please ask. Jain sir. Hi Jain. Sir, a most important question, since we have started the session with one of the important parameter while coming in the cyber domain, that is certification. So what I have observed in last 2 years, people are running for the certification only, कि केवल अगर मेरे पास CEH का सर्टिफिकेट है तो क्या मुझे नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। So I would request you to throw some light कि only getting the certificate is not going to serve the purpose of getting a job. You should know the डीप नॉलेज, जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो उसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए
केवल सर्टिफिकेट लेना, सो सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ओनली. फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 500 वालों को फायदा. देखो ऐसा है, मीन्स आई एग्री विद यू तुषार, दैट्स व्हाई जहाँ लगता है ये पता नहीं उड़ा रहा है ना. सर्टिफिकेशन तो बड़ा तो वहाँ से आप अपनी डिग्री होती है, राइट? तो मैंने डिग्री के लिए क्या इस्तेमाल किया, आई थिंक मैंने डिग्री के लिए क्या इस्तेमाल किया, एक गेट पास है. सिमिलरली सर्टिफिकेशन पे एक गेट पास है कि आपको एक टेबल तक बिठा दे इंटरव्यू के लिए, राइट? एंड सर्टिफिकेशन, कुछ सर्टिफिकेशन ऐसे है कि कुछ लोग, आई विल नॉट से ऑल, दे आर नॉट ट्रूथफुल टू देमसेल्फ. मैं जब ट्रूथफुल और एथिक्स की बात करता हूँ ना, तो दे आर नॉट ट्रूथफुल. सर्टिफिकेशन तो कुछ ऐसे ही मिल जाते हैं, कुछ सीरियसली करते, हैंड्स ऑन करके लेते हैं. तो जिन्होंने सीरियसली हैंड्स ऑन करके लिया है या राइट वे से लिया है, वो तो सक्सीड कर जाते हैं. एंड सेकेंडली, एज यू राइटली सेड, मैंने जब टी मॉडल की बात की तो मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट, मेरे पास लगभग 50 सर्टिफिकेशन है इफ यू आस्क मी, राइट? बट मेरा अगेन स्किल से फॉरेंसिक्स है, तो मैं उसी वही सर्टिफिकेशन मेरे लिए लागू हो जाता है. अंडरस्टूड. सो तुषार, यू आर वेरी मच राइट, एंड आई नो वी आई, इफ आई रिमेंबर, आई मेट यू इन FCRF, अगर मैं सही नाम आपका ले रहा हूँ. यस सर. हाँ, सो देखो, मैं थोड़ी सी मेमोरी है मेरे पास शायद. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू आर राइट इन द सेंस इट्स अ मिक्स्ड बैग. आपको एक चीज करने से सब कुछ नहीं मिला. एंड सी, दिस सेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग जॉब, यू नो. हम साइबर वॉरियर की बात करें, मैंने क्या कहा कि वो करियर एनहांसमेंट तो बहुत जरूरी है, और उस पर शायद अलग एक सेशन हो जाए वो, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी उस पर बात करें. बट आपको डिग्री, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, एथिक्स सब साथ में लेके चलना है. तब दैट हैज टू बी, योर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम जब हायरिंग करते हैं ना, तो आजकल वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं या एक बोलते हैं कि आप ये करके दिखाओ, तब आपको हम हायर करेंगे. तो सर्टिफिकेशन ठीक है, वो आपको सिर्फ एक लेवल तक ले जाएगा, इवन एक डिग्री भी आपको एक लेवल तक ले जाएगी, बट उसके आगे आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके ऊपर आपने किस स्किल को ओन किया है. ठीक है? आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन तुषार. यस सर, थैंक यू. और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज देखो, नीरज वर्मा ने क्वेश्चन पूछा है कि सम स्टूडेंट आर फाइनेंशियली अनेबल टू परस्यू पेड प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स, वी आर रिक्वेस्ट टू अरेंज फ्री ट्रेनिंग्स. वो आप आर्या और इनको आप जरूर कर दीजिए. ही इज डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज. ये भी तो एक फ्री ट्रेनिंग ही है ना. अगर ये कॉर्पोरेट के साथ डिस्कशन कर रहा होता तो मैं आई वुड हैव चार्ज देम समथिंग लाइक दैट, और एनी एक्सपर्ट फॉर दैट मैटर. तो आप जब एक ऐसे सेशन में आते हो, तब ये एक ट्रेनिंग ही है, इन तरह से एक आपकी ट्रेनिंग ही चल रही है. और रिगार्डिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स, देखो ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन द ट्रेनर. एंड ये मैंने देखा गया है, आई totally agree with you. I also came from the same background. Maybe 99% of us who are standing come from the same background, because India is a country which has very, you can say, the professionals who come, they come from a hand to mouth kind of family and all, and they want to grow big and all. And it's not that others don't come, but I'm just a maximum people की बात कर रहा हूँ. बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नीरज. मैंने जब मेरी मैगजीन शुरू की ना 10 साल पहले, तो मैंने उसको फ्री में बांटना शुरू किया. तो लोग बोलने लगे मुझे, यार इसका कोई वैल्यू नहीं, फ्री में ना, ये इसमें ये सब जगह मिलता है, तो ये फ्री. तो स्पेशली स्पेशलाइजेशन के जब जाते हो, तो फ्री लंचेज या फ्री चीजों को कोई वैल्यू नहीं देता. अगर कोई करवा रहा है तो बहुत अच्छी बात है. देयर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन. There are a lot of free courses available on different platforms which you can attend, and that will be suffice for you if you are not able to afford high level training. And high level की जरूरत है ही नहीं. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक स्किल डेवलप करो. वो स्किल आप किसी तरह भी आ सकते हो. आप इंटर्नशिप करके ला सकते हो, आप फ्री कोर्सेज करके ला सकते हो, आप ये करके ला सकते हो. सौरभ, ये ना फ्री रिसोर्सेज का आई थिंक ये बता देंगे आपको जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो दैट्स, देखो, हम लाइफ में जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनाओगे ना, और तब तक वो नहीं होगा. एंड अपने जो पिक्चर्स भी देखते हो, कहानी जो सक्सेसफुल होती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, शायद एक आध है, वैसे हजारों करोड़ लोग हैं जो मेहनत करते हैं. मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं है. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू वर्किंग हार्ड. सो आप प्लीज ये जानिए कि, and even if you are unsuccessful ना, you should find another route. जब पानी को आप
बहता है ऊपर से, जैसे हिमालय से बहता है, तो ये नाले में नहीं तो दूसरे नाले में चले जाता है, नदी बन जाती है। तो आप ये सोचिए, कंट्रीब्यूट करिए, सक्सेस जरूर आएगा। मैं अपनी शुरुआत तो कर ही ली है। अगर आप पहले, मैं जिनके भी नाम देख रहा हूँ, आई नो मोस्ट ऑफ देम, वो हर इवेंट में मैं जिनके नाम अभी देख रहा हूँ, वो 10-10 साल वाले एक्सपीरियंस पीपल भी ये छोटे से इंट्रोडक्टरी सेशंस के लिए आए साइबर वॉरियर के। मैं सबको जानता हूँ, जैसे प्रशांता है, ही वो मेरे मैगजीन के लिए लिखते थे, आई थिंक इज देयर राइट, ही जस्ट ड्रॉप्ड अ मैसेज कि यूडेमी में कोर्सेज है, सब कुछ है। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं भी 27 साल बाद अभी भी लर्न करता हूँ, ठीक है, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ सीखूं, कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री कोर्स अगर पे नहीं कर सकते, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, आप प्लीज इसको, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरा रोल, हर एक का रोल अलग होता है, इसलिए बोलता है कि मैं अभी अवेयरनेस वाले रोल्स में नहीं काम करता। मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट या एट अ नेशनल लेवल पे क्या ज्यादा इफेक्ट हो, मेरा हर एक को अपना पोटेंशियल भापने की जरूरत है। तो अभी मैं, जैसे मैं अपने आप को कहता कि मैं नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कुछ वेरी निश टेक्नोलॉजीज कर सकता हूँ। तो हर एक का अपना अपना एक रोल है, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अभी मेरे पास और 5-1 मिनट है, 5 या 7 मिनट, ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे क्या है। और लॉ, सबको लॉ एनफोर्समेंट सबको प्यारा है, पता है, मुझे भी प्यारा। नमस्ते सर। नमस्ते प्रशांत, हाउ आर यू ना, आपको हाय सर। बहुत अच्छा लगा देख के। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट में सबको जाना है, बट ये देखो, लॉ एनफोर्समेंट में लिमिटेशन है ना, किन किन को ले, कितने लोगों ले। अगर आपको पुलिस में आता, पहले पुलिस में भर्ती हो, फिर साइबर में जाओ। अगर दूसरी तरह से करना है तो कॉन्ट्रेक्चुअल या साइबर सेल्स के साथ एसोसिएट हो जाए, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर दे रखे। इफ किसी को लगता है मैंने नहीं दिया तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन। किसी सर ने पूछा, आई हैव अ जनरल क्वेश्चन, हाउ शुड आई मैनेज टाइम विद गेट प्रिपरेशन। अरे मैं सौरभ, ये है ना, ये अपने आप को ही पूछना चाहिए ये क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम नहीं मैनेज कर पाए वो कुछ नहीं मैनेज कर पाएगा जिंदगी में, ठीक है। तो आगे ये ब्रूटल आंसर था, बट ये रियलिटी है, सच्चाई। मैं बोलता ना, आई ट्राई टू टेल द ट्रुथ टू पीपल, तो ये सच्चाई। टाइम मैनेजमेंट जो नहीं कर पाए तो 2 घंटे पहले उठो, 2 घंटे लेट सो जाओ, यही एक तरीका है। फ्रीलांसिंग तो बहुत तरह से हो सकती है। फ्रीलांसिंग आप साइबर सेल में जाके जो भी एसपी या इंचार्ज है उनको बोलो कि आई एम अवेलेबल, अगर कोई काम होगा तो बता दे। फ्रीलांसिंग कोर्स में जरूरत होती है एक्सपर्ट्स की। फ्रीलांसिंग में आप अपनी कंपनी खोल सकते हो एज स्टार्टअप। फ्रीलांसिंग हर बहुत तरीके से हो सकती है। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग सर। सर ये फ्रीलांसिंग पे एक मेरा क्वेश्चन था सर, जो कंपनी सेटअप के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा सर इसमें? देखो बेस्ट है, जीरो इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहे तो इंक्यूबेट हो जाए। लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर सीआईआई के अंडर है, डीएसए के अंडर है, आईआईटीज के अंदर है। तो उसमें क्या होता है कि दे हेल्प यू इन स्टार्टिंग अ कंपनी एंड अ स्टार्टअप। अगर आपके पास कोई आइडिया है या कुछ आप करना चाह रहे हो तो फ्रीलांसिंग में बहुत है। जैसे कि मैं एग्जांपल अपने ही फील्ड का देता हूँ, जब भी कोर्ट में तो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो फ्रीलांसर्स भी है, जो स्पेसिफिक फील्ड के, दे आर कॉल्ड। एंड मैं आपको सिंपल एक देता हूँ कि अगर मेरे फील्ड में एक डेटा रिकवरी करने, तो उसको क्या फॉरेंसिक लैब में जाने की जरूरत है? वो किसी नुक्कड़ कोने में, ये किसी के शॉप होगा या किसी की कोई सर्विस होगी, वो उसको अवेल कर लेता है, राइट। सो दिस इज हाउ फ्रीलांसिंग कैन डू लॉट ऑफ थिंग। See, youngsters, the next generation, blindly following anyone is wrong, and blaming anyone is also wrong. कि उसने बोला मैंने किया और मैं I blame him for what I am is wrong. साइबर में ऐसा है कि इट्स अ एवर इवॉल्विंग फील्ड। शायद मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग पिछले सेंचुरी में की थी, 1995 में, ठीक है, वो मेरा इंजीनियरिंग मेरी शुरुआत थी। तो maybe I may be a bit outdated and you may be a bit, more learned. So cyber security में you have to firstly upend yourself, upgrade yourself, reskill yourself, and learning concept के बारे में, everything is a learning। हम तो youngster से भी सीखते हैं, आप senior से आप सीख सकते हो, youngster से सीख सकते हो। So most of the questions are related to career. So I would request ki Webhack to have a separate session with separate expert on this particular topic.
रंजीत, फॉरेंसिक टूल इज कॉस्टली, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए इंटर्नशिप्स की जरूरत है। तो देखो ऐसा है कि हैव और हैव, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि फॉरेंसिक टूल ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ जो चीप हो, जो अभी तो सब कुछ कोशिश करें। कुछ फील्ड्स है बिकॉज उसमें काफी R&D जाता है, रिसर्च जाता है, और जिसमें रिसर्च जाता है वो कॉस्टली होगा ही, ठीक है। तो आपको एक अगर नॉर्मल कोई टूल चाहिए जो कि इरेज करे तो वो शायद चीप मिले, बट आपको एनालिसिस टूल, बिकॉज उसमें काफी लोगों का एफर्ट गया है, रिसर्च गया है, पैसा गया है, तो ऑफकोर्स वो कॉस्टली होगा ही ना। बट स्टिल एज अ मेक इन इंडिया वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये आप, दिस इज अ रियलिटी एंड अगेन यू शुड एक्सेप्ट इट। Yes, Niharika, I think I'm done with it now. We can, any questions from your side? I think everyone has asked their doubts, and if anyone has, so please feel free to ask, but in a short of time. So if You anyone can has follow me on any doubt- LinkedIn. You can ask me on LinkedIn if you have any Okay. questions. I'm very active there. So आप बता सकते हो किसी को भी अगर। Okay, so that's all for today's session. So as we wrap up today's webinar, I would like to extend a heartfelt thank you to Santosh sir for this thought-provoking and informative session. And thanks to all participants for their time, energy, and engagement. So see you all in upcoming sessions. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind. Jai Hind, sir.